Warm welcome viewers, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. The latest controversy involving the Agnipath scheme. Well, the opposition, not just one party, a number of parties banded together to raise the scheme in Parliament. Aam Aadmi Party's Sanjay Singh today accused the centre of creating Jati Veers using Agni Veers as caste is being asked in recruitment forms. This was an issue he wanted to raise in Parliament in 0 hour along with other issues of the scheme, is what the Aam Aadmi Party says. BJP, meanwhile, has hit back at the Aam Aadmi Party, saying centre hasn't made any changes where religion categories or caste categories are concerned. The Indian Army, though, has come out and clarified that this has always been happening. There's nothing new. Here's the full report. Despite massive protests, the Agnipath scheme has rolled out big time, with record enrollments being seen in the Indian Armed Forces. But on Tuesday, the scheme provided certain netas with a fresh opportunity for politics. It began with this tweet from Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh, who aggressively attacked the government, claiming that under the Modi Sarkar, the army was now demanding caste and religion information in enrollment forms for potential defense recruits. The heated claim blew up on social media, unsurprising given what an emotive issue caste is. The topic was too delicious to resist, and soon other opposition netas leapt into this whirlpool of outrage. What they hadn't accounted for was the fact that they were plainly, embarrassingly wrong. आप सेना की भर्ती में जहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए, वहां पर आप जाति क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? इसके पीछे आधार क्या है? क्या आप देखना चाहते हैं ये कौन सा पिछड़ा है, ये कौन से दलित हैं, ये कौन से आदिवासी हैं? ये जानना चाहते हैं आप? इसके अलावा क्या मंशा है आपकी? जिसकी सेहत अच्छी है उसको लीजिए सेना में। बहुत स्पष्ट रूप से आर्मी ने कहा है हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में धर्म का कोई स्थान नहीं, किंतु अनफॉर्चुनेटली, अभाग्यवशत, यदि कर्म क्षेत्र में युद्ध के समय किसी जवान को शहादत या वो बलिदान को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी जो अंत्येष्टि की जाएगी, उसके जो अंतिम क्रियाएं की जाएंगी, वो कैसे की जाएंगी, ये निर्धारित करना भी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के आधार पर होता है। इसलिए धर्म का एक कॉलम होता है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक भी चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। While the army refused to be dragged into the political fracas, given its sensitivity, the facts speak for themselves. The collection of caste and community data in the armed forces goes back 7 decades to the British era, where such data was collected for some key reasons, specifically for administrative purposes to populate regiments of persons from the same area, as well as to generate representational data. It is also used for religious rituals of soldiers who died during training or while on duty. But when have facts ever come in the way of politics? But the more immediate debate over the Agnipath scheme could be afoot in Parliament, with several substantive concerns and questions to be discussed threadbare. But with this ill-informed misfire at the government, the opposition has begun its street fight with dud ammunition. And it has only perhaps added to the misinformation surrounding the scheme. Bureau Report, India Today. Now, the opposition's claim is that the government is trying to convert Agni Veers into Jati Veers. The opposition says, in fact, the government says that the opposition is Farzi Veers in all, because this is all rumor mongering. To take it from here, I am joined right now by two seasoned Rajya Sabha Member of Parliament, one from the Aam Aadmi Party. Sanjay Singh from the Aam Aadmi Party joins us live, as well as Sudhanshu Trivedi from the Bharatiya Janata Party. Sanjay ji, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। संजय जी, आपको भाजपा कह रही है फर्जी वीर, कि आप अफवाह उड़ा रहे हैं कि जाति के उस पर इनलिस्टिंग होगी अग्नि वीर की, ऐसा कुछ नहीं है। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए प्रीति जी, ये अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा है,
लेकिन साथ ही साथ भारत की सेना, भारत माता की सुरक्षा के साथ मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 46,000 भर्ती हर साल कर रहे हैं अग्निपथ योजना में और 34,000 जवानों को हर साल कम कर रहे हैं। आने वाले 20 वर्षों में भारत की सेना आधी हो जाएगी। आपका दुश्मन देश चीन हर साल 4.5 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहा है और आप सेना में हर साल 34,000 जवानों की संख्या कम कर रहे हैं। यह भारत माता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। यह भारत माता की सेना को कमजोर करने की कार्रवाई है। और आप यह बताइए कि आज की तारीख में एक जवान अगर तैयार होता है सेना में तो उसको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अग्निपथ योजना में लिखा कि 6 महीने की ट्रेनिंग देके हम उस जवान को तैयार कर देंगे। एक जवान भारत की सेना में किसी बड़े ऑपरेशन पे लगाया जाता है 5 साल 6 साल की ट्रेनिंग फील्ड ड्यूटी के बाद। आप कह रहे हैं 4 साल में हम उसको रिटायर करके बाहर कर देंगे। 17 साल में जवान बनाएंगे, 21 साल में पूर्व सैनिक उसको बना देंगे। उसको मेडिकल की फैसिलिटी नहीं, पेंशन की फैसिलिटी नहीं, उसको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, कैंटीन तक की फैसिलिटी नहीं। आप भारत की सेना को कमजोर क्यों बनाना चाहते हैं? आप अपने दुश्मन देश से जब लड़ाई होगी तो क्या आप अनट्रेन्ड सोल्जर्स को भेजना चाहते हैं 6 महीने की ट्रेनिंग वाले? क्या आप ट्रेन्ड सोल्जर जो 5 साल तक जमीन पे काम किया हो ऐसे लोगों को नहीं भेजना चाहते? और आपके तर्क कैसे हैं? आप कहते हैं कि साहब ये देश की सेवा है, ये कोई नौकरी नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। देश की सेवा एक जवान करेगा -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में और +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में 21,000 रुपए लेके। और हमारे मोदी जी 12 करोड़ की गाड़ी में घूम के देश की सेवा करेंगे, हजारों करोड़ के जहाज में घूम के देश की सेवा करेंगे, सारे सांसद विधायक मंत्री बड़े बड़े बंगलों में रह के देश की सेवा करेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे भारत की सुरक्षा के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, ये मैं कहना चाहता हूं। सुधांशु जी भी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सुधांशु जी। पर संजय जी, आपने तभी भी मेरे जो सवाल है उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपको अभी भाजपा कह रही है आप फर्जी वीर हैं, आप अफवाह उड़ा रहे हैं। जब आपने जाति वीर की बात की, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कास्ट के बेसिस पर अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। ये बहुत पहले से शुरू हो रहा है कि ये तो प्रोटोकॉल होता है कि आपको अपना... अरे मैं सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर नहीं है, मेरे अपने घर पे नहीं लिखा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेना में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं है। ये आप भी जानती हैं, सुधांशु जी भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं। तो जब सेना में कोई आरक्षण नहीं है, आप पहली बार ये योजना अग्निपथ योजना शुरू करने जा रहे हैं, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट मांग क्यों रहे हैं? जब वहां आरक्षण ही नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि 75% लोगों की छटनी करनी है। तो जब वो छटनी आप करेंगे तो आपकी मोदी जी की सरकार लिस्ट जारी करेगी। किस लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट मांगने का मतलब क्या है? जहां पे आरक्षण ही नहीं है वहां कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हैं आप? सुधांशु जी, तो मेरा सवाल यह है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप भारत की सेना को कमजोर क्यों कर रहे हैं? यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरा जी, इसमें आपने ये अग्निवीर वायु या ये वायुसेना का जो ऑर्डर लिखा है, इसमें साफ तौर पे लिखा है आपकी गवर्नमेंट ने कि साहब सबको एक बार बाहर किया जाएगा, उसके बाद 25% लोगों को लिया जाएगा जरूरत के मुताबिक। तो मेरा सवाल यह है कि आप ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं जिससे भारत की सेना को आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, इसमें आप भारत माता की सीमा की सुरक्षा को आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जो है बहाना ऐसा लेते हैं जिसपे हंसी आती है। आप कह रहे हैं पैसा नहीं है। 11 लाख करोड़ रुपए तो मोदी जी ने अपने पूंजीपतियों का माफ कर दिया। अडानी को पूरे दुनिया में ठेका दिलाते हैं। 34,000 करोड़ रुपए DHFL ने बैंकों का लूट लिया। 27 करोड़ रुपए उसने बीजेपी को चंदा दिया। संजय आप जी, कहते हैं सेना के लिए, भारत की सेना के लिए पैसे की कमी हो गई मोदी सरकार के पास। सुधांशु जी बड़े पेशेंटली सुन रहे हैं, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। सुधांशु जी, संजय जी कह रही हैं देखिए ये तो कोर्ट ने साबित कर दिया है कि इसके आधार पर भर्ती नहीं होती है। ये फौज ने भी साफ बोल दिया है कि कास्ट रिलीजन के आधार पर भर्ती नहीं होती है। तो
इस बार जब स्कीम चलाई, संजय जी पूछ रहे हैं, तो क्या तर्क था कि उसमें एक कास्ट कॉलम रहा। दूसरी उन्होंने जो और क्रिटिसिज्म दी है, जो ओवरऑल अग्निपथ स्कीम है उसकी भी बात करी है। देखिए, संजय सिंह जी हमारे राज्यसभा के सम्मानित सदस्य हैं, परंतु राजनीति अपनी जगह है, परंतु मैं कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं। परंतु देश की सुरक्षा की कीमत तक जाकर वाहियात आरोप लगाने की आम आदमी पार्टी की एक सीमा है। ये कह रहे हैं, जब बताया गया कि यथावत वह चलती आ रही, आज से नहीं पहले से। संजय जी जो आप कह रहे हैं आपकी पार्टी कह रही, हास्यास्पद ये नहीं है। सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, नाम नहीं सुना क्या कभी? किस तरह के हास्यास्पद बात करते हैं। और फिर क्षेत्र भी होता है। ये बताइए, गलवान में जो हमारे सैनिक लड़े थे किस रेजिमेंट के थे? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए। बिहार रेजिमेंट के थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री का नाम नहीं सुना? कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट नहीं सुना? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कहीं पर भी कास्ट फैक्टर नहीं है, परंतु जब जवानों को मोटिवेट करना होता है तो यहां इतना ही नहीं, उनका धर्म भी इसलिए भी पूछा जाता है 2 कारणों से। जब वो युद्ध में जा रहे होते हैं तो यदि वो किसी धार्मिक परंपरा से प्रेरित होकर उनके मन में अधिक आत्मविश्वास आता है तो वो पूजा, कंठी माला, तावीज करना चाहे, बाकायदा धार्मिक गुरुओं की नियुक्ति करती है सेना। पुजारी भी नियुक्त होते हैं, मौलवी भी नियुक्त होते हैं, ग्रंथी भी नियुक्त होते हैं। और फिर इतना ही नहीं, यदि दुर्भाग्यवश कोई ऐसे दुर्गम स्थानों में कोई घटना हो जाए और किसी के अंतिम संस्कार की आवश्यकता पड़ जाए तो उसका उसी धर्म के अनुसार पूरे सम्मान से किया जाए। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं, खाने तक में यह ध्यान रखा जाता है, कौन वेजिटेरियन, कौन नॉन वेजिटेरियन, और नॉन वेजिटेरियन में कौन झटका और कौन हलाल का खाना चाहता है, उसका भी सम्मान करते हैं। और आज से नहीं, अगर मैं पूछूं तो शायद आम आदमी पार्टी को ना पता हो, जाट रेजिमेंट किसके जमाने से? सन 1795। और इन्हें 2022 में नजर आता है कि भाई मोदी जी पहली बार लागू कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, और आश्चर्यजनक बात जानते हैं क्या है प्रीति जी? दुख की बात यह है, ये वो लोग पूछते हैं जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मानते हैं, जो एयर चीफ के द्वारा बालाकोट स्ट्राइक की घोषणा करने के बाद कहते हैं आदमी गिरे थे कि पेड़ गिरे थे। ये वो लोग हैं जो उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं कि इंडियन आर्मी सिविलियंस को ज्यादा मारती है। ये वो लोग हैं जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट समाप्त हो जाना चाहिए, इस ढंग की बातें अपने घोषणा पत्र में कहते हैं। ये वो लोग हैं जो कि आतंकवादियों के पक्ष में जाकर सुरक्षा बलों के ऊपर मुकदमे चलने चाहिए ह्यूमन राइट्स के, उसके साथ खड़े होते हैं। और उस ढंग के लोग आकर जब इस प्रकार की बात कहना शुरू करते हैं तो यह बात पूरे देश की जनता को बहुत साफ नजर आती है। और मैं प्रीति याद दिलाना चाहता हूं, यह 2006 मार्च याद है, सेक्टर कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे भारत सरकार ने लोकसभा में यह बोल दिया था कि इंडियन आर्मी में मुस्लिम हेडकाउंट होना चाहिए। जनरल जे सिंह ने स्ट्रांग अपोजिशन किया था, तब उसके बाद जाके राज्यसभा में इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला कि नहीं नहीं, सरकार का ऐसा कोई करने का इरादा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अंत में जो भारत की सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहते हैं और जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले लगाते हैं, जो भारत की सेना के वक्तव्य पर भरोसा नहीं करते और चीन की सेना के दावे पर अधिक भरोसा करते हैं, हमारे मित्र संजय जी को शायद नहीं ध्यान होगा कि चीन की सेना ने पिछले 8 साल में अपनी संख्या 23 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की है। ये भारत माता के साथ बात करें, आपको पता है 1960 के दशक में चीन में कितनी सेना थी? 60 लाख, आज है 20 लाख, 1/3 हो गई है। और चाइना की सेना का नाम है PLA, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। वो इंटरनल सिक्योरिटी भी देखती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी देखती है। यानी हमारे यहां जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस का हिस्सा है वो भी है, और हमारे यहां आर्मी सिर्फ ये देखती। इसलिए मैं कह रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जाकर आम आदमी पार्टी इस प्रकार की बात करे, और वो भी संजय सिंह जी जैसे सम्मानित राज्यसभा के सदस्य यह बात करे, तो ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। आपके मित्र संजय सिंह जी बड़े पेशेंटली सुन रहे थे। संजय जी, आपने काफी बार उंगली उठाई, इसका जवाब देना चाहते हैं, कहिए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि उन्होंने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। वो भारत की सेना को कमजोर क्यों कर रहे हैं इसका जवाब नहीं दिया। 6 महीने की ट्रेनिंग का सोल्जर क्यों तैयार कर रहे हैं इसका जवाब नहीं दिया। 4.5 लाख सेना के लोगों को ट्रेनिंग देता है हर साल, यह रिपोर्ट है। इसको दिखाइए सुधांशु जी को। चीन आपका दुश्मन देश, जिससे लगातार सीमा पर विवाद रहता है हमारा, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने नौजवानों की पेंशन खत्म क्यों कर दी, मेडिकल फैसिलिटी खत्म क्यों कर दी, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं।
हर साल 34,000 अगर सैनिक आप कम करेंगे तो 20 साल में भारत की सेना आधी हो जाएगी। भारत की सुरक्षा के साथ मोदी जी खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? भारत माता के साथ मोदी की सरकार गद्दारी क्यों कर रही है? इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि 11 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के चंद पूंजीपतियों का आपकी सरकार माफ कर देती है, लेकिन भारत की सेना के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए आपके पास पैसे नहीं है। पैसे का आप रोना रो रहे हैं। 34 हजार करोड़ रुपए एक डीएचएफएल हाउसिंग कंपनी लूट लेती है और वो 27 करोड़ रुपए आपकी पार्टी को चंदा देती है। आप सेना को पैसा देने के नाम पे रोना रो रहे हैं और देशभक्ति और गले लगाने की बात पता नहीं किसके संदर्भ में आप कर रहे हैं। किसने पाकिस्तान की सेना अध्यक्ष को गले लगाया, वो सिद्धू जी से जाके आप पूछिए। लेकिन मुझे तो याद है कि आप बगैर बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले गए थे मोदी जी। आप वो पार्टी हैं जिसने अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। आप वो पार्टी हैं जिसने आईएसआई, जो हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देती है, उसको बुलाकर आपने पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराई, भारत को अपमानित करने का काम किया। तो इसलिए देशभक्ति पर, राष्ट्र की सुरक्षा पर आपसे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने तो 52 साल तक भारत का तिरंगा नहीं फहराया अपने आरएसएस के मुख्यालय पर। भारत की सुरक्षा, भारत माता की रक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ मत कीजिए। भारत की सेना को कमजोर करने की कोई कोशिश मत कीजिए। 4 साल के सैनिक और 5 साल के ट्रेंड सैनिक को बड़े ऑपरेशन में लगाया जाता है, ये आप भी जानते हैं, आपकी सरकार भी जानती है। तो क्यों 4 साल के बाद आप नौजवानों को निकाल के बाहर करने की योजना? देखिए, जब ऐसे तो दिग्गज आके डिबेट कर लेते हैं ना, तो एंकर का रोल कम रह जाता है। वो रेजिमेंट उसका नहीं उत्तर दीजिए। जाट रेजिमेंट और उसका रेजिमेंट, अरे सुधांशु जी, आपको मालूम नहीं कि राजपूत रेजिमेंट में ब्राह्मण भी होते हैं, राजपूत रेजिमेंट में दूसरी जातियों के लोग भी रहते हैं, मद्रास रेजिमेंट में सिर्फ तमिलनाडु और मद्रास के लोग नहीं रहते, उसमें दूसरे साउथ के स्टेट्स के लोग भी रहते हैं, बिहार रेजिमेंट में झारखंड के लोग भी रहते हैं। तो ये सारे ये आप अगर एक कोई नई योजना लेकर आ रहे हैं, आप उस अग्निपथ योजना में, पहली बात तो ये योजना भारत की सेना को कमजोर करेगी। आप इसको ला क्यों रहे हैं, ये देश के नौजवानों को समझ में नहीं आ रहा है। और आप इस योजना में कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। संजय जी, मैं सुधांशु जी के पास वापस जाऊंगी। जैसे मैंने बोला, जब दो दिग्गज डिबेट करते हैं ना, ये राज्यसभा का डिबेट है, तो एंकर का रोल कम रह जाता है। सुधांशु जी, आप आंसर करना चाह रहे थे, कहिए सर। हाँ, देखिए, पहले तो अपनी बात का उत्तर इन्होंने खुद ही दे दिया। जब ये कहा 4 साल के बाद सभी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, नए सिरे से नियुक्ति होगी, तो 6 महीने का सोल्जर कहां से हुआ भाई? वो सोल्जर तो बनेंगे उसके बाद। 6 महीना तो 4 साल तो सिर्फ ट्रेनिंग है। जैसे मान लीजिए 2 साल की प्रोबेशन पीरियड होता था, वैसे 4 साल है, जिसमें उनको वेतन भी मिल रहा है, मेडिकल सुरक्षा भी मिल रही है, ट्रेनिंग भी मिल रही है और 12वीं पास का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। अगर घर पे बैठते 10वीं के बाद 2 साल 12वीं करते ना, 2 साल 12वीं करने के बाद बताइए 23 लाख रुपए किसकी जेब में होता है, अलॉन्ग विद मिलिट्री की ट्रेनिंग, और उसके बाद वो सोल्जर बनेगा। तो पहला तो ये असत्य वाचन। दूसरी बात ये कहने लगे कि भाई रेजिमेंटों की बात इन्होंने मान ली, फिर कहने लगे फलाने भी होते। बिल्कुल 50% सोल्जर ही उस कम्युनिटी या उस क्षेत्र के होते हैं, बाकी अलग होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स उस क्षेत्र के नहीं होते हैं। तो मान्यवर, ये आपकी दूसरा आपने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि ये आज से नहीं, आजादी से नहीं, आजादी के पहले से भी चलता चला आ रहा है। और आपको पता है जाट रेजिमेंट का जय उद्घोष क्या है? जाट बलवान जय भगवान, सीधे उसमें जाट नाम है। गोरखा रेजिमेंट का वो क्या है उद्घोष वाक्य? आयोरी गोरखाली जय महाकाली, उसमें महाकाली का भी नाम है, गोरखाली का भी नाम है। परंतु मैं फिर कहना चाहता हूं, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की थी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद? आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने, कि सबूत ला के दीजिए हमको। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर से किसने की थी? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, और इधर से अरविंद केजरीवाल। बस इतना साफ है ये बताने के लिए कि कौन राजनीति करता। और सेना को मजबूत करने की बात, डिफेंस प्रोडक्शन हमने शुरू किया सबसे पहले, लो स्टेट ऑर्बिट में मारने की क्षमता हमने बनाई, न्यूक्लियर सबमरीन हमने बनाई, और तो और अटल जी की सरकार में परमाणु विस्फोट हमने किया था। इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं। और जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, इन्होंने कहा अरे भाई वो कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, सिर्फ हमारी सरकार रहते हुए एकमात्र मौका जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड यह बोला है कि शाह महमूद कुरैशी साहब आए और उस समय आर्मी चीफ आए, उनके पैर कांप रहे थे
उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है शाम तक अभिनंदन को वापस कर दो वरना मोदी अटैक कर देगा। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया गया बयान है। ऐसा तो 1971 में कोई जज्बा नहीं याद है जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री या किसी मंत्री ने कहा हो कि सेना के जनरल के पैर कांप रहे थे। मगर इसके बावजूद वो सारे लोग जो आतंकवाद के आरोपियों के साथ खड़े, बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के साथ खड़े, कश्मीर में आतंकवादियों के आरोपियों के साथ खड़े, वो आकर जब यह प्रवचन देते हैं तो मेरे विचार से देश की जनता दूध का दूध और पानी का पानी समझती। सुधांशु जी को एक शो पे जाना है, पर संजय जी मैं कोई सवाल नहीं करूंगी, काफी सारे सवाल सुधांशु जी ने पूछ लिए हैं आपसे, बोलिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सुधांशु जी बोल के क्या जा रहे हैं, वो बोल के क्या जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं 19 साल की नौकरी जब एक सैनिक की होती है तो 5 साल ट्रेंड सोल्जर जो होता है, जो फील्ड में काम कर चुका होता है, आज की मौजूदा व्यवस्था में उसको किसी बड़े ऑपरेशन में लगाया जाता है। मेरी बात वो शायद समझ ही नहीं पाए। एक सैनिक को आप 6 महीने में तैयार करके, 6 महीने की ट्रेनिंग में तैयार करके और 4 साल में उसको रिटायर कर दे रहे हैं। तो कहां वो 5 साल वाला तो आपने छोड़ा ही नहीं ना, 75% को तो आप निकाल के बाहर कर दे रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे आप भारत की सेना को कमजोर कर रहे हैं। इस सवाल का आपने कोई जवाब नहीं दिया। 20 साल के अंदर 34,000 सैनिकों को अगर हर साल आप कम करेंगे तो 20 साल में भारत की सेना आधी हो जाएगी। इसका जवाब आप बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। भारत की सेना के लिए आप लगातार पैसे का रोना क्यों रो रहे हैं? अरे आप रिपीट कर रहे हैं मान्यवर, मैं जवाब दे दूं। जबकि आप रिपीट कर रहे हैं अपने सवाल का। सुधांशु जी, लाखों करोड़ रुपए जी संजय जी आपने कहां दिया? आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। संजय जी, सुधांशु जी बोलना चाह रहे हैं, उनको निकाल दे रहे हैं सेना से। हाँ मैं जवाब, सुधांशु जी बोलिए। टेक्निकल जवाब दे रहा हूं। देखिए पहले मैं ये कहता हूं, ये बताइए आज से 15 साल पहले ड्रोन की टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब अगर 4 किलोमीटर के लिए सर्विलेंस करनी है तो 5 लोगों की एक प्लाटून होती थी। ऐसे 4 लोग होते थे जो 6-6 घंटे पे करेंगे, 20 लोगों की जरूरत थी। आज ड्रोन के द्वारा सिर्फ 4 लोगों पे हो सकता है। क्या बात करते हैं, टेक्नोलॉजी किस लेवल पे पहुंच गई और ये कह रहे हैं संख्या के आधार पे। और दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल के ऑपरेशन की बात कही, मैं विनम्रता से संजय जी से पूछना चाहता हूं, भारत की सेना का सबसे कम आयु का परमवीर चक्र विजेता कौन था और कितने साल की ट्रेनिंग के बाद गया था, बताइए संजय जी। अब मैं बताता हूं। नहीं मैं, अरे आप ये देखिए का काम तो नहीं है ना। 2 साल की ट्रेनिंग थी, इसीलिए मैं कह रहा हूं। एक सेकंड सुधांशु जी, ये नहीं मैं ये कह रहा हूं, आपने संजय जी से सवाल किया, उनको उत्तर देने दीजिए। सोल्जर को सीमा पे लड़ाने की बात कर रहे हैं। नहीं मैं प्रीति जी, मुझे सीरियस ऑपरेशन है आपकी बात पे। एक बार साल से पहले सीरियस ऑपरेशन में भेजा संजय जी उत्तर देना चाहते हैं। ऑब्जेक्शन है कि आप भारत की सेना को आधा कर रहे हैं। उदाहरण दे रहा हूं, आप भारत की सेना को आधा करने जा रहे हैं। भारत की सेना के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप। मुझे सीरियस ऑब्जेक्शन है जाति कि नरेंद्र मोदी जी भारत की सेना को आधा कर रहे हैं। क्या मोदी जी की सरकार नरेंद्र मोदी जी भारत की सेना को 20 साल में आधा कर देंगे। इसका एक जवाब आप नहीं दे रहे हैं। 34,000 सैनिक हमारे हर साल कम क्यों कर रहे हैं कि 20 साल में आधा कर देंगे? पैसे का रोना भारत माता की रक्षा के लिए क्यों रो रहे हैं? सरासर झूठ बोल रहे हैं ये। क्यों आप रो रहे हैं? और चीन के दावे पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। अरे मुझे चीन के आंकड़े का किसी को आवाज नहीं आवाज। अरे सुनिए, मैंने जो बोला है संजय जी, 100 करोड़ रुपए आपके पास। चलिए मैं एक काम करती हूँ सर, ये बहुत मोदी के लिए है। सर आप तो मित्र हैं, आप दोनों मित्र हैं सर, आप दोनों तो मित्र हैं, इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? एक एक करके चलते हैं, बस फिर शो बंद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आप हमसे जुड़े। सुधांशु त्रिवेदी जी का भी बहुत शुक्रिया कि हमसे जुड़े। विद दैट आई एम गोइंग टू क्लोज दिस हीटेड डिबेट। इट्स वेरी रेयर दैट यू गेट 2 Rajya Sabha MPs who actually debated with each other like they were on the floor of the House.